Hello students, today we will discuss about the second part of the metals and the non-metals. In first part we have already learnt about the physical and the chemical properties of the metals and the non-metals. Okay, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, in this video we will discuss about the reaction of metals and the non-metals। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ। ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟਨ, ਜ਼ੀਨੋਨ, ਰੇਡਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KLMN ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਓਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 10। ਆਰਗਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੀ ਹੈ K ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ? 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ KLMN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ? K ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਫਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, L ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 8, M ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ K ਸ਼ੈਲ ਹੈ, K ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਓਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਓਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਓਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ K ਸ਼ੈਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ L ਸ਼ੈਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ 8, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗਨ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? 18 ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 2 8 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ K ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ M ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। N ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਦ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਐਟਮ ਟੂ ਹੈਵ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਬਲ ਗੈਸ। ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਕੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 8 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਕਟੇਟ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਦੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਹੈਜ਼ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਇਟਸ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, if it loses the electron from its M shell then its L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 11 ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 11 ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, 11 ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 2 8 ਤੇ 1, ਮਤਲਬ ਕਿ K ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, L ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ M ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ K ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ,
K ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, M ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ M ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। मतलब कि ये आउटर मोस्ट शैल्स की सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन है, ठीक है। वो की करूँगा आपदा एक इलैक्ट्रॉन के लूज करके की कर दूगा एक इलैक्ट्रॉन M शैल्स के लूज कर दूगा, तो जो लूज कर दूगा वो किन्ने रह जाएंगे सिर्फ 2 तो कि 8 रह जाएंगे, क्यों नहीं एक इलैक्ट्रॉन है कि करता लूज करता, ठीक है, किसी होर एटम नूं देता, ठीक है। तो वो कोले सिर्फ की बचा वो सिर्फ की है एक के शैल बचा तो की एल शैल बचा। हुण उहदा की एल शैल जिहड़ा हो जाऊगा वो की होगा आउटर मोस्ट शैल हो जाऊगा, ठीक है। यही इन्होंने कहा देखो सोडियम हैज़ एटम हैज़ 1 इलैक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शैल। अपने को सोडियम जिहड़ा सी उहदे कोल सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन है कि आउटर मोस्ट शैल दे विच। इफ इट लूजेज द इलैक्ट्रॉन इन फ्रॉम इट्स एम शैल, जे आप एम शैल के विचों की एक इलैक्ट्रॉन के लूज कर दूगा then its L shell now becomes the outermost shell। फिर ਉਹਦਾ ਕੀ L shell ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ outermost shell ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। and that has a stable octet। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ octet ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਓਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ 28, ਨਿਓਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 28 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ अचीव कर ली, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटोन। आप पढ़िया सी कि सोडियम है वो एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो 11 इलैक्ट्रॉन तो 11 ही प्रोटोन होंगे, ठीक है। हुण ये न्यूक्लियस के 11 प्रोटोन आ बट द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। उन्हें एक इलैक्ट्रॉन के लूज करता सी, प्रोटोन 11 दे 11 है बट एक इलैक्ट्रॉन लूज करके ये सिर्फ के 10 इलैक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटाइन। हुण इहदे कोले की है पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, मतलब कि सोडियम की है Na की है प्लस हो गया, इधर नैट चार्ज केड़ा हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ठीक है, इनू आपां की कहने कैटाइन, जिहड़ा कि जिहदे की पॉजिटिव चार्ज होगा उन्होंने आपां की कहांगे कैटाइन। जिहदे जिहड़े भी एटम दे उत्ते की नैगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो कोई भी एटम होगी नैगेटिव चार्ज होगा उन्होंने आपां की कहांगे एनाइन कहांगे। इहदे ते पॉजिटिव चार्ज इनू की कहांगे कैटाइन। हुण की सोडियम का की हो गया देयर इज़ अ नैट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस दी सोडियम कैटाइन। इन्हें आपां नूं की दित्ता सोडियम कैटाइन दिता, ठीक है। नैक्सट की कहते हैं ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलैक्ट्रॉन in its outermost shell and it requires the one more electron to complete its the octet। देखो हुण की क्लोरीन है, क्लोरीन लैने आपां, क्लोरीन का कितना सीगा अटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। क्लोरीन का इहदे विच की होणगे 17 की होणगे इलैक्ट्रॉन, 17 ही की होणगे प्रोटोन्स होणगे, ठीक है। हुण इहदा की जिहड़े के एल एम एन शैल्स दे विच किन्ने होणगे 2, एल शैल्स दे विच 8 हो सकते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा, एम शैल्स दे विच भी 8 हो सकते हैं, बट इहदा की है अटॉमिक नंबर की 17 है। 10 इत्थे पूरे हो गए तो इत्थे की रह गया सिर्फ 7 हो गए। इट मीनस कि ये आउटर मोस्ट शैल्स दे विच की 7 इलैक्ट्रॉन है। इनू कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ कि 1 इलैक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। वही इन्होंने कहा है देखो ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलैक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शैल एंड इट रिक्वायर्स दी 1 मोर इलैक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स दी ऑक्टेट। इनू कि सिर्फ 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर की कहते हैं आफ्टर इफ अ सोडियम एंड दी क्लोरीन वर टू रिएक्ट, जो सोडियम ते की है क्लोरीन आपस के विच रिएक्ट करन, द इलैक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दी सोडियम कुड बी टेकन अप बाय दी क्लोरीन, क्योंकि सोडियम को लेके 1 इलैक्ट्रॉन ज़्यादा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन को लेके 1 इलैक्ट्रॉन घट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक ही कारण कि जिस कहते सोडियम की है क्लोरीन को 1 इलैक्ट्रॉन दे दूगा आफ्टर गेनिंग एन इलैक्ट्रॉन द क्लोरीन गेट्स द यूनिट चार्ज, वो यूनिट चार्ज हो जाएगी बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटोन, 17 प्रोटोन है, ठीक है। तो वो 17 इलैक्ट्रॉन से, बट हुण की है जो गेन कर लूगा 1 इलैक्ट्रॉन के ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देयर आर 18 इलैक्ट्रॉन इन इट्स के एल एंड एम शेल, दिस गिव्स अस द क्लोराइड आयन एंड सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन
कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन दैम एज फॉलोज। देखो हुण अपने को लिखिए सोडियम सीगा, सोडियम को लेके है एक इलेक्ट्रॉन की है ज़्यादा है, ठीक है। देखिए सी 2 8 ठीक है। देखिए सिर्फ आउटर मोस्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन देखिए आउटर मोस्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने सी 7 इलेक्ट्रॉन। देखो हुण अपने को लेके क्लोरीन है, क्लोरीन को लेके एक इलैक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम को लेके एक इलैक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी की है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हुण सोडियम की करूँगा इनू की है एक इलैक्ट्रॉन दे दूगा, ठीक है। ਇਹਦਾ भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाऊगा एक इलैक्ट्रॉन दे के, ਇਹਦਾ भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाऊगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ सोडियम की है जो ਦਿੰਦਾ है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाऊगा एन ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हम क्लोरीन है, क्लोरीन को 17 इलैक्ट्रॉन सी 17 ही की प्रोटोन सी जो एक इलैक्ट्रॉन लै लूगा, प्रोटोन्स तक ही 17 के 17 ही रहेंगे, एक इलैक्ट्रॉन लिया तो ये कितने हो जाएंगे 18 इलैक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यदा की है ऑक्टेट रूल की है ऑक्टेट की है कंप्लीट हो चुका है। इतने कितने हो जाएंगे 2 2 तो ये के शैल के एल कितने हो जाएंगे 8 एम के एक इलैक्ट्रॉन लैके की है वो भी की है 8 बना लूगा। हम ये की इलैक्ट्रॉनिक नोबल गैस की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन्हें की अचीव कर ली, ठीक है। यदा ऑक्टेट की कंप्लीट हो गया। जो इनू की एक इलैक्ट्रॉन दूगा तो ये को एक इलैक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुका तो की फॉर्म कर लूगा क्लोराइड आयन बना लूगा, ठीक है, एनाइन। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस किया जिदे की नैगेटिव चार्ज होगा उन्होंने आप एनाइन कहांगे, जिदे पॉजिटिव चार्ज होने की कैटाइन कहांगे, ठीक है। हुण इन्होंने की किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक इलैक्ट्रॉन ज़्यादा सी उन्हें उन्होंने की देता, यदा की गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। इन्होंने की गिव एंड टेक रिलेशनशिप बना लिया इन्होंने, ठीक है। इस तरह की है अपना की है नेक्स्ट की सोडियम एंड द क्लोराइड आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एट द सोडियम क्लोराइड। हुण इन्हां दोनों के उपर की ऑपोजिट चार्ज सीगा, ठीक है। देखो सोडियम के उत्ते की है पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोराइड के उत्ते की है नैगेटिव चार्ज है, ठीक है। हुण ये की करनगे इन्हां दे विच की है आपां नूं पता है जिहड़े पॉजिटिव चार्ज होंदे आ ओह की रिपैल करदे, पॉजिटिव नैगेटिव की है एक दूसरे नूं की अट्रैक्ट करदे, ओपोजिट चार्ज एक दूसरे नूं की अट्रैक्ट करनगे ते की है जदों अट्रैक्ट करनगे तो इन्हां विच की है स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाऊगी जिहड़ी कि इन्हां नूं की है सोडियम क्लोराइड बनाउण दे विच की है हैल्प करूगी, ठीक है। सिमिलरली की है मैगनीशियम क्लोराइड आपां की सिमिलरली की मैगनीशियम क्लोराइड बनावांगे। देखो मैगनीशियम का की सीगा 12 सीगा इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये 12 ही की होंगे इलैक्ट्रॉन, 12 की होंगे प्रोटोन होंगे, ठीक है। तो मैगनीशियम के के एल एम एन शैल्स के किमें होंगे, देखो के दे विच हमेशा 2 होंगे, एल दे विच 8 होंगे तो की हो गए 10 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए, एंड तक की रह गए 2 रह गए, मतलब ये आउटर मोस्ट शैल के कितने 2 इलैक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्लोराइड के आप जो बनावांगे क्लोरीन का की है 17 है, मतलब 17 ही इलैक्ट्रॉन 17 ही की होंगे प्रोटोन होंगे, ठीक है। तो ये भी के एल एम एन शैल्स के होंगे 2 8 7, ठीक है। ये होंगे ये आउटर मोस्ट शैल 2 है, ये आउटर मोस्ट शैल की है 7 इलैक्ट्रॉन। अपने को लेके क्लोरीन के किन्ने ने 2 एटम्स ने, ठीक है। हम देखो मैगनीशियम का बनावांगे आप मैगनीशियम को लेके अपना की है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए को लेके 2 इलैक्ट्रॉन की ज़्यादा है, जो 2 इलैक्ट्रॉन किसी होर नूं दे दूगे तो यदा की ऑक्टेट की कंप्लीट हो जाऊगा, ठीक है। हम आप बनावांगे तो इधरों की है क्लोरीन, क्लोरीन के कितने 2 एटम्स ने, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ ਤੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 2 8 ਤੇ ਕੀ ਹੈ 7। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2 7 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2 ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ यानी कि 2 इलैक्ट्रॉन दिते ये प्रोटोन तो 12 ही रह जाएंगे 2 इलैक्ट्रॉन की इन्हें लूज़ करते ठीक है। तो ये नैट पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा 2+ हो जाएगा ठीक है। क्लोरीन है हुण इन्हें क्लोरीन ने 1 इलैक्ट्रॉन गेन किया तो ये उत्ते की है नैगेटिव हो जाएगा। इन्हें 1 इलैक्ट्रॉन गेन किया तो ये उत्ते नैगेटिव हो जाएगा। इन्हें की बना लिया मैगनीशियम कैटाइन इन्होंने दोनों ने की क्लोराइड एनाइन बना लिया ठीक है। इस तरह की आपस के रिएक्ट करके की बना लैणगे मैगनीशियम क्लोराइड। अपोजिट चार्ज ने आपस के की इन्हों की अट्रैक्शन होगी तो इन्हों के इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इन्हों की हैल्ड करके रखूगी होल्ड करके रखूगी तो की बना लूगी मैगनीशियम क्लोराइड बना देगी ठीक है। नेक्स्ट की द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड और द इलैक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये की है जिहड़े कंपाउंड्स की है ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम मैटल टू की नॉन मैटल के इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे जिन्होंने उस कंपाउंड में आप कहने आयनिक कंपाउंड ਜਾਂ कि इलैक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहने ठीक है। नैक्सट आप पढ़ांगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ दे विच फर्स्ट की है फिजिकल नेचर द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। आयनिक कंपाउंड्स की होंगे सॉलिड होंगे तो कि हार्ड होंगे क्यों होंगे क्योंकि इन्होंने के स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन पॉजिटिव एंड दी नैगेटिव चार्ज। आप हम देख के हटे हैं पॉजिटिव तो नैगेटिव के चार्ज के इन्हें की है इन्नी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी है तो इन्होंने की होल्ड करके की है एक की कंपाउंड बना देंदी है ठीक है। वो कंपाउंड का नाम की सी आयनिक कंपाउंड सी इसलिए आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होंगे तो कि सॉलिड होंगे ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। इसलिए ये कंपाउंड्स की होंगे इन्हों आप पीसिस जो भी आप ये उत्ते प्रेशर अप्लाई करांगे तो पीसिस के टुट जाएंगे ठीक है। नैक्सट की है मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट्स की होंगे मेल्टिंग पॉइंट की होंगे द टैंपरेचर एट विच द मैटल स्टार्ट्स मेल्ट है ना जेडे भी टैंपरेचर दिते गए मैटल की है मेल्ट करना स्टार्ट करते उन्हें मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की है जेडे टैंपरेचर दिते मैटल की है बॉयल करना स्टार्ट करते उन्होंने की कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने आयनिक कंपाउंड्स का की है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों दिस इज़ बिकॉज अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक अट्रैक्शन ठीक है। ये क्यों होगा क्योंकि ये लिए आप क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्होंने आपको ब्रेक करने के लिए आपको क्या बहुत अमाउंट के एनर्जी चाहिए होगी इसलिए इन्हों का की आयनिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की हाई होगा ठीक है। नैक्सट है सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड है कि इनू की इलैक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं ठीक है। इलैक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एक है वाटर के विच की सॉल्यूबल होंगे तो इनसॉल्यूबल सॉल्वेंट सच एज दी कैरोसिन तो पेट्रोल एक ही है जोड़े आयनिक कंपाउंड्स होंगे वाटर के विच की ईजिली की है डिजोल्व हो जाएंगे बट जोड़े की है कुछ होर सॉल्वेंट्स ने जिमें कैरोसिन तो पेट्रोल के विच की डिजोल्व नहीं होंगे कि इनसॉल्यूबल होंगे ठीक है। नैक्सट की है कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ये की है द कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इनवॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स
ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन, जो भी आप इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट करना आपां नू पता आपां नू की चाहिए आयन्स चाहिए ने, ठीक है। ये की होणगे मूवमेंट ऑफ चार्जड पार्टिकल्स की की मूवमेंट होगी, फिर ही अपने को की इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स दी आयन, जो भी सोल्यूशन होगा आयनिक कंपाउंड का, जो उन्होंने वाटर के डिजोल्व करांगे तो वो की होणगे आयन्स होणगे विच मूव टू दी अपोजिट इलैक्ट्रोड्स, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ अपोजिट इलैक्ट्रोड ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ मूव ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲ मूव ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ मूव ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡੂ ਨੋਟ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द आयन इन द सॉलिड स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि सॉलिड स्टेट दे विच की आयन्स की मूव नहीं करते, ठीक है। इसलिए की वो की कंडक्ट नहीं करेंगे इलैक्ट्रिसिटी नू, ठीक है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, इस सॉलिड स्टेट दे विच की आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं करेंगे इलैक्ट्रिसिटी नू, बट की जो कि आयनिक कंपाउंड्स नू आपां की मोल्टन स्टेट दे विच लैके आवांगे, उदों की आयनिक कंपाउंड्स की इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। दिस इज़ पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्जड आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट, जो आप हीट करांगे, ठीक है, वो जी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी है अपोजिट चार्ज के की है वीक हो जानी है, ठीक है। दस द आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट द इलैक्ट्रिसिटी, फिर क्या आयन्स की मूव कर लग जाएंगे तो इलैक्ट्रिसिटी की कंडक्ट कर लेंगे। इस आप यही पढ़िया भी जो आपको पता है जो भी आप इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है आपू क्या आयन्स चाहिए जोड़े कि फ्रीली मूव कर सकन, ठीक है। बट जो आप आयनिक सोल्यूशनस के आयनिक कंपाउंड्स के इलैक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है सॉलिड स्टेट के होंगे है, तो उत्थे क्या आयन्स की ईजिली मूव नहीं कर सकते, जो मूव नहीं करेंगे तो इलैक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। बट जो आयनिक कंपाउंड्स को आप मोल्टन स्टेट के ले आईए, मतलब उन्होंने की हीट करिए, ठीक है, तो वो की मैल्ट हो जाए, ठीक है। उत्थे की है जी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द अपोजिट चार्ज, वो की है वीक हो जूगी, वीक होने तो बाद की आयन्स जोड़े कि फ्रीली मूव करेंगे तो इलैक्ट्रिसिटी की है कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर्स के विच पक्का पूछा जाता है, ठीक है। नैक्सट आप अगे कुछ क्वेश्चंस करांगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की है राइट द इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम ऑक्सीजन ते मैग्नीशियम। सब तो पहले आप इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन ते की है मैग्नीशियम, देखो सोडियम है, सोडियम दे विच सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, ठीक है। तो मतलब कि ये के एल एम शैल्स के विच कितने होंगे 2 8 ते के 1, हम ये डॉट स्ट्रक्चर बना लाँगे सोडियम का के एल के शैल, फिर के एल शैल, दैन के एम शैल, एन शैल के विच कोई इलैक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आप नहीं बनावांगे, ठीक है। देखो के शैल दे विच की 2 इलैक्ट्रॉन ने, ठीक है। एल शैल्स दे विच कितने 8 इलैक्ट्रॉन 4 5 6 7 8, एम शैल्स दे विच सिर्फ की है 1 इलैक्ट्रॉन, ठीक है। नैक्सट आप बनाना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का की होंगे एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ठीक है। ये के एल एम शैल्स के कितने होंगे 2 तो के 6, ये आउटरमोस्ट शैल्स के कितने होंगे 6 इलैक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हम आप ऑक्सीजन का बनावांगे, ठीक है। एम शैल्स के कोई इलैक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आप एम शैल नहीं बनावांगे, ठीक है। ये के शैल्स के सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन ने, ठीक है। एम शैल्स के 6 इलैक्ट्रॉन ने, 3 4 5 ठीक है 6, ठीक है। एंड कि सोडियम का की है सिर्फ की है 1 इलैक्ट्रॉन है सिर्फ बैलेंस शैल्स के। ऑक्सीजन के कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
इवें कि डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नैक्सट है मैगनीशियम। मैगनीशियम का आपां नूं पता है कितना हुंदा एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, इसलिए ये KLM शैल्स दे विच किन्ने होणगे 2 8 2, मतलब ये आउटरमोस्ट शैल्स दे विच किन्ने ने 2 इलैक्ट्रॉन ने। ठीक है, जो आप मैगनीशियम का बनावांगे K शैल L शैल, ठीक है, M शैल। ठीक है, K शैल्स दे विच किन्ने ने 2 इलैक्ट्रॉन, M शैल्स दे विच किन्ने ने 8 इलैक्ट्रॉन। ठीक है, M शैल दे विच की है सिर्फ की है 2 इलैक्ट्रॉन है, इसलिए आउटर मोस्ट शैल दे विच की है सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन है। ये की हो गया मैगनीशियम का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नैक्सट आप करेंगे शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड Nd मैगनीशियम ऑक्साइड बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण आपां ये आयनिक कंपाउंड्स बनाने ने बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन, वो आप शो करना किवें बनावांगे। देखो सोडियम का आप कर चुके हैं, सोडियम का की है डॉट स्ट्रक्चर की है सोडियम के विच सिर्फ की है 1 इलैक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शैल्स के विच। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शैल्स के विच कितने होंगे 6 इलैक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हम आप बनाना, ठीक है, इस कंपाउंड में बनाना तो आप करांगे। देखो आप सोडियम बना चुके हैं। ठीक है, सोडियम का आप दोबारा ड्रॉ कर लेने स्ट्रक्चर। देखो सोडियम के इतने की है 2 एटम्स ने। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शैल दे विच बाकी आपां पता ही के दे विच 2 होणगे ते L दे विच के 8 होणगे, सिर्फ आपां आउटर मोस्ट शैल बनावांगे। ठीक है, 2 एटम्स ने सोडियम दे तक कि आपां 2 बना लांगे। आउटर मोस्ट शैल दे विच सिर्फ की 1 इलैक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन का आपां नूं की पता है ये आउटर मोस्ट शैल दे विच कितने 6 इलैक्ट्रॉन ने, सिर्फ कि आपां आउटर मोस्ट शैल ही बनावांगे। ठीक है, हुण आपां नूं पता है देखो सोडियम को लेके ਉਹਦਾ ऑक्टेट कंप्लीट करने तो कि एक की इलैक्ट्रॉन की है ज़्यादा है, जो 1 इलैक्ट्रॉन किसी होर नूं दे दूगा तो ਉਹਦਾ ऑक्टेट की कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट दे विच की है 2 इलैक्ट्रॉन की कमी है, जो 2 इलैक्ट्रॉन किसी होर तो लै लूगा तो ਉਹਦਾ ऑक्टेट की है कंप्लीट हो जाएगा। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप शो करेंगे। ठीक है, सोडियम की है ए वाला सोडियम की है इन्हें 1 इलैक्ट्रॉन दे दूगा। ठीक है, तो दूसरा सोडियम भी इन्हों की 1 इलैक्ट्रॉन दे दूगा। ठीक है, ये जो आपस दे विच की बनाउणगे, देखो ये सोडियम ने 1 इलैक्ट्रॉन दिता है, ये की है पॉजिटिव चार्ज आ गया सोडियम दे, इन्हें भी 1 इलैक्ट्रॉन दिता है, ये लिखे भी है पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने की 2 इलैक्ट्रॉन दिते, इको ऑक्सीजन ने की अलग अलग एटम्स ए सोडियम एटम के विचों की 2 इलैक्ट्रॉन दिते हैं, तो लिखे 2 नैगेटिव चार्ज आ गया ऊपर। ठीक है, हुण ये की है ओपोजिट चार्ज ने आपस के विच की अट्रैक्शन शो करनगे। ठीक है, तो की कंपाउंड बना लेंगे Na2O। ठीक है, यही अपन गया सी। नैक्सट अपन गया गा मैगनीशियम ऑक्साइड। हुण आपां मैगनीशियम ऑक्साइड का बनाना। देखो मैगनीशियम का की सीगा 12 सीगा है ना, ये KLM शैल्स विच के 2 8 2 सीगे। ठीक है, ऑक्सीजन का हुणे आपां पढ़ के हटे इहदा कि 8 सीगा, ये KLM शैल्स दे विच किन्ने 2 ते 6 है। ठीक है, आप जो मैगनीशियम का बनावांगे ये को एक एटम ही की है मैगनीशियम का, इको ही की है ऑक्सीजन का। देखो हम आप मैगनीशियम का बनाया, ये सिर्फ आपको पता है के एल दे विच के 8 8 है, सिर्फ आप आउटर मोस्ट शैल दे के इलैक्ट्रॉन शो करांगे। ऑक्सीजन दे ये कि आप आउटर मोस्ट शैल करांगे देखिए 6 इलैक्ट्रॉन ने। ठीक है, ये 2 इलैक्ट्रॉन्स की है तो लैके कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूगा। तो मैगनीशियम को लेके 2 इलैक्ट्रॉन ज़्यादा है, जे 2 इलैक्ट्रॉन किसी होर नूं दे दूगा तो यदा ऑक्टेट भी की है कंप्लीट हो जाएगा। तो एक नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन की है अचीव कर लूगे। इत्थे की ये 2 इलैक्ट्रॉन घट है, जे कि दो इलैक्ट्रॉन किसी होर तो लै लूगा तो ये एल शैल के विच की 8 इलैक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये है दोनों इलैक्ट्रॉन की अपने ऑक्सीजन एटम नूं दे दूगा, तो ये की बन जाएगा Mg2+, ये की बन जाएगा O2 नैगेटिव। हम दोनों ओपोजिट चार्ज थे कि आपस दे विच की अट्रैक्शन शो करनगे तो किहड़ा कंपाउंड बना लेंगे मैगनीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नैक्सट की है व्हाट आर दी आयन्स प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन। किहड़े आयन्स सीगे इहदे विच, देखो एक तो आप हुणे पढ़िया मैगनीशियम 2+ आयन है, ऑक्साइड ठीक है 2- तो सोडियम की है Na+, ये सारे की है इस दे विच की आयन्स प्रेजेंट ने। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੂ ਆਇਨੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਵ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਇਨੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਨੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।